Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, myself Hira Lodia from JMP English Medium School. Kids, in this year I am going to take your science. I am your science teacher. Right kids? So in today's section number 1 of chapter number 1, that is living things and non-living things. Today's introductory section, right? Through introductory session, I am going to explain you all vocabulary words with meanings and pictures, right? So जिसके through आपको easily ये पूरा का पूरा chapter समझने में easy हो जाए, right? So kids, this chapter is all about living things and non-living things. Kids, I think you know about living things and non-living things. आप सबको पता है ना कि क्या living things है और क्या non-living things. मतलब living things are different from non-living things in many ways. Living things or non-living things, they both are totally different from each other, right? जैसे कि living things can breathe, living things can move, living things can feel. In the other way, non-living things cannot feel, non-living things cannot move, right? कि जैसे living things को emotions होते हैं, उसको नहीं होते non-living things को. कभी देखा है कि बैग अपने आप चल के एक क्लास से दूसरी क्लास चला गया? No, because it is a non-living thing, right? But we are living things. We can move, we can do anything, right? So these are the difference between living things and non-living things. In this session and in this chapter, I am going to explain all the things in a different way, right? So kids, let's start vocabulary words through PPT. So kids, as I told you that we are going to learn so many vocabulary words through PPT. Now kids, you are in grade 3, right? So maximum we are going to use which language? English. So try to understand, okay? Now next. Lesson 1, living and non-living things. As I told you earlier, living beings are different from non-living things in many ways. मतलब बहुत सारे ways में living things और non-living things वो एक दूसरे से अलग है. Now let's see living things and non-living things. We see many things around us, right? When we wake up to till we are going to sleep at night, right? In between we are going to so many things. जैसे कि we are seeing living things like plants, animals, birds, and in non-living things like books, balloons, car, etc., right? So these are the things which we need to understand, which are the living things and which are non-living things, right? तो ये चैप्टर में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट? लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ आर लिविंग थिंग्स. जो ऐसी थिंग्स जिसके पास अपनी लाइफ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स, things that do not have life or non-living things. There are so many different things जिसके पास life नहीं होती है अपनी. What we are going to call it? We are going to call it them as a non-living things, right? In living things we can give examples like so many, like girl, boy, each and every human beings, even animals, birds, trees, plants, so many, right? And in non-living things we can give so many examples. We are seeing so many non-living things around us, like umbrella, basket, then after truck, pet, bottles, so many things, right? Then after living things, right? What are the different features of living things than non-living things? Like living things can move, living things चल सकते हैं, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो भी होते हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसको फूड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, राइट? देन आफ्टर लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रीथ भी करते हैं. देन आफ्टर लिविंग थिंग्स कैन रीप्रोड्यूस, मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने जैसे बेबीज को बर्थ भी देते हैं. इट मीन्स दे कैन रीप्रोड्यूस ऑल्सो, राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ये किसके फीचर्स है? लिविंग थिंग्स. कैन वी रिपीट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, living things can breathe, and last
living things can reproduce also, right? Now, non-living things, things that do not have life are non-living things. ऐसे things जिसके पास life नहीं होती है उसको हम क्या बोलेंगे? Non-living things. So these are the features of non-living things. Non-living things cannot move. Non-living things है वो move नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पे. Non-living things cannot grow. Even non-living things cannot grow. वो grow भी नहीं होते. कभी आपने देखा है कि आपके घर का कबर्ड है, डोर है, वो डे बाय डे लॉन्ग हो रहे, लंबे हो रहे, ग्रो हो रहे, ओल्ड हो रहे, राइट? सो non-living things cannot grow. Non-living things cannot breathe. Non-living things breathe भी नहीं कर सकते. जैसे we are breathing, right? We are inhaling, exhaling. But non-living things cannot breathe. Then after, non-living things cannot reproduce. Means कभी आपने देखा कभी एक बेड है, थोड़े टाइम के बाद 2 बेड हुए, देन आफ्टर 4 बेड हुए? नहीं, बिकॉज इट इज मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, राइट? देन आफ्टर, नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट नीड फूड. जैसे लिविंग थिंग्स को अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए दे नीड फूड, वाटर एंड सो मैनी थिंग्स. बट नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की और वाटर की नीड नहीं होती है, राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. आई थिंक किड्स you will getting to know about the difference between living things and non-living things. Now let's repeat the features of non-living things. Non-living things cannot move. Non-living things cannot grow. Non-living things cannot breathe. Non-living things cannot reproduce. Non-living things does not need food and water. Clear? I hope so you understand all the difference between living things and non-living things. Now let's start our vocabulary words of this chapter. Chalo, vocabulary number 1, air holes. Tiny holes along the sides of the bodies of insects that help them to breathe. Kids, we are breathing through our nose, right? हम breathe किसके through करते हैं? Nose के through. But there are so many insects, they have a air holes. वो क्या होते हैं एयर होल्स? एक जो टाइनी होल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स के बॉडी के साइड में होते हैं, जिसके थ्रू वो ब्रीद करते हैं. क्या करते हैं? जिसके थ्रू वो ब्रीद करते हैं. Here kids, I have already shown a picture, right? A picture of an insect, right? यहाँ पे मैंने आपको एक एरोज दिखाए हैं, राइट? एरोज है वहाँ पे, इंसेक्ट्स के एयर होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो इजीली ब्रीद कर सकते हैं. क्लियर? यहाँ पे मैंने होल का एक बड़ा सा इमेज भी साइड में दिखाया है. समझ में आ रहा है ना किड्स? Okay, now next, stomata, pores in the leaves of plants through which they take in and air out. एक plants के पीछे वाले part में, kids, if you have a plants at your home, just take one leaf. You need to cut one leaf and just watch it out back side, because वो हम नहीं देख सकते हैं हमारी eyes से, बट उसके पीछे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी एयर जो होते हैं वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं. तो वो छोटे से पोर्स होते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ स्टोमेटा. जैसे हम ह्यूमन बींग्स नोज के थ्रू ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्लांट में जो लीव्स होते हैं पर्टिकुलरली, जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट ऐड करते हैं, दैट टाइनी होल्स इज कॉल्ड एज अ स्टोमेटा, राइट? नाउ नेक्स्ट, नंबर 3, sense organs. Kids, we all know, right? We have 5 sense organs. Organs such as eyes, ears, nose, tongue and skin that enable us to sense the changes around us. With these 5 sense organs, we easily getting to know changes around us, right? We can smell it, some good smell. Then after, we hear different types of sounds. We are seeing so many different colors through our eyes.
through tongue we are tasting so many different things, we getting to know that this is a bitter taste, this is a salty taste, this is a so मतलब खट्टा मीठा जो कोई भी टेस्ट हो हम टंग के थ्रू हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, राइट. देन आफ्टर skin also can feel the changes around us, like this is a summer season, this is a cold season. Either I can give you a slap, then your skin also felt that this दीदी ने हमें स्लैप दिया, आपकी स्किन को इजीली पता चल जाएगा, राइट. सो दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स विच आर दे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. जो हमारे आजू बाजू के चेंजेस को सेंस करता है उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट number 4, reproduction. Now kids, what is the meaning of reproduction? The process of producing more young ones to one's own kind. Kids, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सारे के सारे एनिमल्स अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने ही जैसे छोटे बेबीज़ को बर्थ देते हैं. जैसे कि किड्स, कभी आपने देखा है कि डोंकी ने काऊ के बच्चे को बर्थ दिया, कि काऊ के बच्चे ने डॉग के बच्चे को बर्थ दिया? नहीं, अपने जैसे ही बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, राइट. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैंने आपको डॉग का एग्जाम्पल दिया है, उसके जैसे ही उसकी पपीज़ है, राइट. सो डन. नाउ नेक्स्ट नंबर 5, hurt, physical pain or injury. Kids, physical pain or injury, we are you are so small kids, right? You are playing outside, आप बाहर खेलने भी जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी you fell down, आप गिर जाते हो, आपको लग जाती है, इंजरीज हो जाती है, चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होता है, राइट. तो वो कोई भी चीज़ होती है जिसके थ्रू हमें कुछ भी हर्ट होता है, हमें लगता है, हमें दर्द होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्ट. क्या बोलेंगे किड्स, हर्ट. हर्ट कहीं पे भी लग सकता है हमें, कभी कभी नाइफ लग जाती है, सीजर लग जाती है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल पेन और इंजरी को हम क्या बोलेंगे, हर्ट. डन. नाउ नेक्स्ट नंबर 6, सराउंडिंग. ऑल राउंड अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. सराउंडिंग मतलब हम हमारे आजू बाजू में कोई भी सराउंडिंग थिंग्स होती है. हियर आई हैव शोन अ पिक्चर ऑफ नेचुरल सीन, राइट. Rivers is flowing, there are so many green plants and sky is clear, clouds are there, right. So this is the picture is surrounding of a natural scene, right. बट हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, अगर हम स्कूल में होते तो देर आर सो मैनी डिफरेंट क्लासेस, सो मैनी डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, वी आर सीइंग सो मैनी डिफरेंट बैग्स, बुक्स, राइट. तो दिस इज द सराउंडिंग ऑफ आवर स्कूल. राइट नाउ यू आर एट होम, तो आपके सराउंडिंग में क्या होगा, आपके सराउंडिंग में अगर आप हॉल में बैठे हो तो वहाँ पे टीवी होगा, सोफ़ा होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, सो मैनी थिंग्स, राइट. किचन में तो यूटेंसिल्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे. देन व्हेन यू आर इन बेडरूम देन योर सराउंडिंग इज लाइक बेड, कबर्ड, मिरर, कॉस्मेटिक्स आइटम्स, राइट. सो हम कहीं पे भी जाए वहाँ के डिफरेंट सराउंडिंग्स होते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, ड्रूप. नंबर 7, ड्रूप. Bend or hang downwards limply. Kids, have you ever observed any kind of a plants? आपने कभी अपने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है? जो कोई भी प्लांट जो होता है वो बेंड हो जाता है और एक टाइम से वो हैंगिंग जैसा दिखने लगता है, राइट. तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रूप होना. क्या बोलेंगे किड्स, इट्स काइंड इट्स अ वर्ड, ड्रूप मतलब कोई भी फ्लावर है, कोई भी चीज़ है वो हैंग हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रूप. नेक्स्ट number 8, lifespan. The length of time for which a person or animal lives or a thing functions, the human lifespan. Like lifespan एक ऐसी चीज़ है जहाँ की एक lifespan होती है, एक पर्टिकुलर एक लेंथ होती है कोई भी पर्सन, कोई भी लिविंग थिंग को मेजर करने की. जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, बर्थ से लेके वो ओल्ड होने तक एक उसका लाइफ स्पान होता है. जैसे कि 60 ईयर्स, 70 ईयर्स. डॉग का लाइफ स्पान कितना होता है, अराउंड 10 to 12 ईयर्स, राइट. सो
डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पान. जैसे कि बटरफ्लाई होता है, वो मैक्स टू मैक्स 20 से 30 डेज तक जिंदा रहते हैं, राइट. तो एक सबके अलग अलग लाइफ स्पान होते हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्पान कितना है, अराउंड 60 to 70 की कोई भी ह्यूमन बींग है 60 to 80 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है. सो वी ऑल हैव ए डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पान की जहाँ पे जो कोई भी इंसान जिंदा रहता है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, उसकी लेंथ है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पान. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. हियर आई हैव शोन अ पिक्चर ऑल्सो कि हम जब बोर्न होते तब से लेके ओल्ड होते उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पान. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, नंबर 9, एनिमीज. A thing that harms or weakens something else. Here there are so many different types of meaning of enemies. Enemies मतलब दुश्मन, right? So in this chapter enemies like animals में बहुत enemies होते हैं. कोई भी कार्निवोर्स एनिमल होता है वो हर्बीवोर्स एनिमल को मार देता है अपनी भूख को मिटाने के लिए, राइट. तो कार्निवोर्स एनिमल्स, हर्बीवोर्स एनिमल्स के एनिमीज हुए, राइट, दुश्मन हुए. उससे वो बचने की ट्राई करते, भागने की ट्राई करते हैं, राइट. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें हार्म करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे एनिमीज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, नंबर 10, breathe. Take air into the lungs and then expel it, especially as a regular psychological process. Breathe मतलब kids we are breathing in and out, right? तो ये एक प्रोसेस होती है सांस को अंदर लेने की और बाहर निकालने की. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग, राइट. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सहेल मतलब सांस को बाहर निकालना, राइट. सो टेक एयर इनटू द लंग्स, जिसके थ्रू हम इनहेल करते वो एयर लंग्स में पहुंचती है. और मतलब हम इसको एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, राइट. सो दिस इज कॉल्ड ब्रीथ. नाउ नेक्स्ट, नंबर 11, क्लोरोफिल. Chlorophyll is any or all of a group of green pigments that are found in plants and other organisms, which enables them to use the energy from sunlight, right? All green plants contain chlorophyll. Plants use the nutrients from sunlight to produce a green pigment called chlorophyll. Kids, have you ever noticed that maximum plants के कलर कौन सा होता है? मैक्सिमम प्लांट्स के कलर्स ग्रीन होते हैं जस्ट बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड प्लांट्स. दैट्स व्हाई द कलर ऑफ प्लांट्स इज ग्रीन. देयर आर वेरिएशंस चेंजेस लाइक सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, राइट. बट कलर के कौन सा होता है, ग्रीन ही होता है. तो क्लोरोफिल एक ऐसा है जिसके थ्रू सनलाइट के थ्रू वो प्लांट्स इजीली अपने आप में न्यूट्रिएंट्स इजीली ला पाते हैं और फूड भी प्रिपेयर होता है. और जो कलर होता है ग्रीन प्लांट्स का जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, राइट. नाउ नेक्स्ट, नंबर 12, नेचुरल थिंग्स. Kids, there are so many different types of things are there, right? But जो ऐसी things जो हमें नेचर में से मिली है उस टाइप की थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स आर नेचर्स गिफ्ट्स and these things cannot be created by human beings. As I told you that whatever we get that is from nature only. This is not created by us. जैसे कि हम लोग बॉटल्स बनाते हैं तो दैट इज़ अ मेन मेड थिंग, वो नेचुरली हमें नहीं नेचर में से मिली है. बट जो कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नेचर में से मिली है उस टाइप की चीज़ को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल थिंग्स. फॉर देयर आर फ्यू एग्जांपल्स आई हैव wrote here. The moon, sun, river, clouds, mountain, rain, water and so on. So these are the different things which we are going to call it as a natural thing. इन सारी की सारी चीज़ों को हम
नेचुरल थिंग्स बुला सकते हैं, जिसको बिल्कुल भी हमने क्रिएट नहीं किया है, हमने नहीं बनाया है, राइट? क्लियर किड्स? Here I have shown a picture of natural things, right? Sun is there, clouds is here, river is passing, mountains is here, this is full of greenery. Almost I took so many things, right, in this picture. So जिसके थ्रू आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसको क्या बोलेंगे, natural things. Done? Now next, number 13, man-made things. As I told you कि natural things हमें nature में से मिलती है, तो man-made thing, man मतलब हम living things, right? Human beings. तो ऐसी चीज़ें कि man-made things की ऐसी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है, right? Man-made things made or caused by human beings, artificial, synthetic, etc. A man-made fabric, man-made famine. मतलब ऐसी चीज़ें जो मैन ने बनाई है, मैन ने इंट्रोड्यूस की है नेचर में, राइट? तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, मैन मेड थिंग्स. देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड थिंग्स लाइक टेबल, फैन, house, pencil, bridge, car, etc. Other non-living things are man-made, which means that people make them. ऐसी चीज़ें जो people यानी कि हम human beings ने बनाई है, उन सारी की सारी चीज़ों को man-made things बोलते हैं, right? I hope so kids you understand the difference between man-made things and natural things. Again I am repeating, the things which is made by us, that is called man-made things, and the things which is already provided by nature to us, that are called natural things, right? Now next, number 14, famine. एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड. एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्कैरसिटी होती है फूड की. स्कैरसिटी मतलब कि अच्छत था वो, मतलब वहाँ पे फूड होता ही नहीं है. मतलब कैसे कि फूड क्यों प्रॉपर अमाउंट में कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं मिलता है? बिकॉज वहाँ पे जो फूड मतलब वहाँ पे रेन नहीं हुई होती है, प्रॉपर रेन नहीं हुई होती है, तो कोई भी चीज़ ग्रो प्रॉपर नहीं हुई होती. ग्रो नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, राइट? फूड नहीं बनेगा तो कोई भी पर्सन को मिलेगा नहीं. इट इज़ काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होती है जिसके थ्रू प्रॉपर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे स्कैरसिटी हो जाती है फूड की, राइट? तो उसको पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ फेमाइन. क्या बोलेंगे किड्स? फेमाइन. Clear? Now next, last one, number 5, responsive. Reacting quickly and positively. Responsive is a kind of a thing which we can feel it. Mostly we can find it in the plants. Plants में कैसे कि किड्स आपको पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जो सन जब भी राइज होता है उसके सामने वो अपना फेस टर्न कर देते हैं, राइट? तो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स होता है, राइट? जब भी सन चला जाता है तो वो अपना जो फेस होता है वो चेंज कर लेते हैं. मतलब सन जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पे अपनी साइड चेंज करते हैं. यहाँ पे हियर आई हैव शोन अ पिक्चर, राइट? कोई भी एक प्लांट है, सन ऊपर है तो वो स्ट्रेट है, सन राइट में गया तो थोड़ा सा बैंड हुआ. सन टोटली मतलब सन जैसे जैसे अपनी चेंज साइड करता है उसके थ्रू प्लांट्स भी अपनी साइड को चेंज करते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिव, राइट? अगर किड्स सपोज आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो. मैं आपको पीछे से बुलाऊंगी तो आप पीछे से ही रिस्पॉन्स करोगे, पीछे मुड़ जाओगे, राइट? ऊपर से बुलाऊंगी तो आप नीचे होंगे तो आप ऊपर देखोगे, राइट? तो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. बट प्लांट्स में इसको रिस्पॉन्सिव बोलते कि सन जैसे जैसे अपनी साइड चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स भी अपनी मूवमेंट में चेंजेस लाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिव. Done kids? So kids, here I completed all I explained all vocabulary words with meanings and with pictures, जिसके थ्रू आपको easily समझ में आ गया होगा, right? So kids, I hope so you understand all the vocabulary words very nicely. So kids, I explained you all vocabulary words and meanings through PPT, right? I hope so you understand very nicely. Now kids, after this session, I have shared a PDF of my homework, right? मैंने आपके साथ PDF शेयर किया ना मेरे होमवर्क का. So kids, जैसे ही मैंने मेरी CW प्रिपेयर की है, vocabulary words और meanings की you have to write same as like that, right?
You need to write down with good handwriting. Wherever you need to skip line, skip it. Okay, wherever you need to give presentation, give it. Without skill, I'm not going to check your CW. Okay, so write it well. And in next session, I'm going to explain you some other topics. So see you till next session. Bye.